Through that resistance, we have to discharge that capacitor. So see, in circuit diagram, I have written this is the charged capacitor. Now all of you know that when capacitor gets fully charged, at that time, what is the voltage across that capacitor? क्या होता है voltage when capacitor get fully charged? Constant, but कितना? जितना आप सप्लाई देते हो उतना, करेक्ट? सो जो लास्ट कंडीशन में हमने कैपेसिटर को चार्ज किया, सो it is equal to VC is equal to V, correct? Now what is the relation for the discharge voltage and discharge current? So while discharging, the voltage across capacitor is given by VC is equal to V into E raised to minus T divided by time constant tau, where this time constant is RC seconds. Same, we have to put the two conditions. You have to remember this equation. You have to keep in mind. Don't forget this equation. At time t is equal to 0. When जब time t is equal to 0 है, that time capacitor आपका fully charged है. So VC is equal to क्या है आपका? Voltage V है. ठीक है? At time t is equal to tau. जब आपका टाइम थोड़ा-थोड़ा increase हो जाएगा. So what will happen? The voltage goes on decreasing. So the graph will be first capacitor is fully charged and then slowly it goes on discharge. Is it okay? Clear? Yes, ma'am. Discharge voltage. Now come towards the discharge current. See, discharge current. Equation for the discharge current is I is equal to minus I0 e raised to minus t by tau. Now listen, whenever there is a decreasing current, whenever there is a discharge current at that time, we have to use the minus sign, and whatever graph we are drawing, जो हमें graph draw करना है, that graph should be in fourth quadrant. That graph should be fourth quadrant. Okay. So first, at time t is equal to 0. At time t is equal to 0, your current will be maximum current minus V divided by R. And then at time t is equal to tau, it will be 0.368 V divided by R. So graph will be like this. Current will be goes on decreasing. Okay? So this is all about the discharge capacitor voltage and discharge of current of the capacitor during the process of discharge. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now all of you know that your exam will be in the MCQ pattern. So you have what are the important parameters in this charge and discharge capacitor point. First, you must know the equations: capacitor charging, capacitor discharging, and after that, अगर equation पता है, it will be easy to remember the both graphs. Fine. Now take down one numerical on this charging and discharging. Take numerical लेना. Ma'am, 1 minute रुको. Yes. कैलकुलेटर लिया क्या सब लोगों ने? Yes, ma'am. कितने लोग से जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि अभी जो एसी फंडामेंटल्स आपका स्टार्ट होगा इसके बाद, उसमें तो कैलकुलेटर मस्ट. यस, थोड़ा कैमरा रोटेट करा लेफ्ट साइड. ओके. ओके. टेक डाउन ए सीरीज combination numerical. Write down a series combination having resistance R is equal to resistance R is equal to 2 mega ohm. Resistance R is equal to 2 mega ohm. जब आप मेगा लिखती हो at that time M should be capital, right? And milli लिखते हो at that time M should be small. ठीक है. Mega ohm and capacitor C
and capacitor C is equal to capacitor C is equal to 0.01 microfarad 0.01 microfarad is connected across the DC source, the DC micro education is connected across the DC source of 50 volt. Determine the capacitor voltage. Determine the capacitor voltage and charging current after 0.02 second and 0.06 second. ठीक है, 0.06 seconds. तो दो टाइम्स दिए and for these both timings you have to find the value of voltage and current. Now first of all tell me whether this process is charging or discharging process. कौन सी process है? This process is charging because yes उन्होंने दिया है कि it is connected across the supply 50 volt. तो उसमें से आपको समझ में आना चाहिए कि ये charging process है. So you have to use the equations of charging. So first we will find the voltage. Vc is equal to V into bracket 1 minus e raised to minus t by tau. Yes, ठीक है. See, this is the charging voltage. Now, first of all, क्या करो? Separately tau की value calculate करो. R into C. हाँ, R is in mega ohms. You have to convert it into ohms. How to convert? Mega. कैसे conversion करते हैं? 10 to the power 6. Yes. And micro का? -10 to the power -6. -6 exactly. जब मेगा है तो 10 to the power 6 मेगा से ज्यादा है and micro is small so 10 to the power -6. So what is the answer? -6 plus 6 निकल जाएगा so it will be 0.02 simple 0.02 second. Unit is second. ठीक है, so tau तो हमने find out किया. Now first timing क्या दिया उन्होंने 0.02 second. So calculate Vc. Vc is equal to V कितना है 50 volt into bracket 1 minus e raised to time कितना दिया है 0.02 minus minus 0.02 divided by 0.02 ना e raised to -1 आएगा. e raised to -1 आएगा. कैलकुलेट करो कैलसी पे आंसर बताओ मुझे कितना आ रहा है. फर्स्ट कैलसी इसलिए चाहिए नहीं तो आपका कल एग्जाम है और आपके पास कैलसी नहीं है ऐसे होगा. और एग्जाम के पहले एक दिन पहले भी खरीदोगे आप कैलसी फिर भी उसका यूज नहीं है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके ऊपर उतनी कैलसी यूज करने की. पता है सर कितना आया गर्ल्स?
हेलो, 1 मिनट रुको मैम, 1 मिनट। 5498, क्या? 31.5498, आवाज ब्रेक हो रहा है। 31.5, 31.61। 31.60. यस एग्जैक्टली 31.6। मिल गया क्या सबको आंसर ये? यस मैम। This is the first answer. Now second, calculate. Put करो वैल्यू, आप कैलकुलेट करो। For a time t is equal to कितना है टाइम? Second 0.06. Put down the values. Minus 0.06 divided by tau is 0.02. 0.33। देखो कितना है, बताओ जल्दी आंसर। 47.51. Yes, exactly. Answer is 47. हेलो मैम। Yes. मैम सॉरी बट आंसर नहीं आ रहा मेरा। कैल्सी है आपके पास? यस मैम। ओके, ई कौन सा यूज कर रहे हो आप कैल्सी के ऊपर? मतलब मैम समझे नहीं। ई कहाँ से यूज कर रहे हो? ई है क्या आपके पास कैल्सी के ऊपर? ये ई नहीं मैडम। ऐसे कैसे होगा? कैल्सी के ऊपर होगा ये ई। नो मैम, है बट वो अल्फा बटन दबाओ, यस अभी अभी मैं कैल्सी नहीं लेके आई हूँ। अल्फा बटन दबा, फिर ओ ई वाला है ना 10⁻⁸ हाँ हाँ, वो वाला राइट हैंड साइड पे ऊपर है ना, ऑन ऑन ऑफ के इधर कहीं तो है वो, है ना? हाँ हाँ अल्फा। अल्फा मिल गया क्या? हाँ मिल गए। ओके ठीक है, अभी आएगा आंसर। जिनका नहीं आ रहा है वो फ्रैंकली अभी पूछ लो, क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम सिर्फ आपको एबीसी कुछ भी टिक नहीं करना है, ठीक है? कैलकुलेशन करके ही सब कुछ आपको फाइंड आउट करना है। ये हो गया वोल्टेज। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द करंट। ओके, करंट का फॉर्मूला I is equal to, क्या है फॉर्मूला है? I naught I naught e to the power e minus t power by tau. minus t by tau। यस एग्जैक्टली। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम? I naught को एक कैलकुलेट करेंगे। I naught is V divided by R, right? यस मैम। 50 divided by 2 into 10 to the power of 6। I naught पहले देखो कितना आता है। I naught कैलकुलेट करो पहले, बताओ I naught कितना है, and then put in the respective -5, कितना 2.5 into 10⁻⁵। ठीक है, means 2.5 into 10 to the power minus 5 ampere. Now put down in this equation. So first -6 e to the power minus t by tau. Minus t is 0.02। पहला टाइम tau कितना है हमारा? 0.0। बताओ आंसर कितना है? कैलकुलेट कर रहे हो कि ये कर रहे हो? कर रहे। हाँ करो। 91.919 9 19.002 9.225 into 10⁻⁻⁵।
देखो एमसीक्यू में ऑप्शंस आपके कौन से भी यूनिट में हो सकते हैं, ठीक है। सो ये 9.22 into 10 to the power -6, सो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, करेक्ट ना? यस मैम। -6 अगर मैंने रिमूव किया सो इट विल बी माइक्रो एम्पियर, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्स फाइंड आउट करो, 0.06 टाइमिंग के लिए फाइंड आउट करो। बताओ इतना टाइम लगता है क्या कैलकुलेट करने में? (1.256 into 10 raised to -6). यस 1.2 (1.256 into 10 raised to -6). क्लियर? यस मैम। Okay, only 2-3 people are answering. What about remaining students? वन सेकंड मैम, प्लीज स्क्रीन अवेलेबल। कैलकुलेटर में गड़बड़ हो रही है। एलसी में नहीं जम रहा है। तो पूछना चाहिए ना अपने कैलकुलेटर में गड़बड़ हो रही है तो, क्योंकि आप फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो, आपने पर्सनली कॉल करके पूछना चाहिए कि मैडम कैसे ऑपरेट करना है, वी आर रेडी टू टीच यू। आपने पूछना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्या होगा, बहुत कम टाइम है और कम टाइम में आपको ज्यादा सीखना है, तो आप कितना प्रैक्टिस करते हो, खुद से कितना ट्राई करते हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैडम मेरा 1.24 आ रहा। ठीक है, नो इशू, उतना पॉइंट में चलता है, 1.24 1.25 नो इशू। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट के लिए आपको कैलसी लगता है, मैकेनिक्स के लिए लगता है, मैथ्स के लिए भी लगेगा और फिजिक्स के लिए लगेगा, केमिस्ट्री के लिए लगता है। सो प्रैक्टिस तो चाहिए कैलसी की, और फर्स्ट ईयर टू लास्ट ईयर आपको कैलसी, और जितना आपकी प्रैक्टिस है कैलसी के ऊपर, उतने फास्ट आप एमसीक्यू एग्जाम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, बंद करूं कैमरा? यस मैम। Okay, now I will discuss the test and in remaining time I will start the next unit. कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है? ओके, दिया है सब लोगों ने। Now I will mark this. I will consider these marks in term work. Only 45 students have attempted this exam. What about others? I will call personally to पेरेंट्स, ओके, जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनके पेरेंट्स को मैं पर्सनली कॉल करूंगी। ओके, लिसन, आई विल शेयर द स्क्रीन।
दिख रहा है क्या ये? सॉरी, यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट का आपका, प्रैक्टिस टेस्ट 1। यस हाँ? मैम, Yes, यस ma'am. यस दिख रहा है मैम, ना? दिख रहा है। ओके ठीक है, लिसन। अभी देखो यहाँ पे मैंने नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर उसके बाद रोल नंबर बताया था। फिर भी कोई रहते हैं स्टूडेंट्स जिनको समझ में नहीं आता है, गलती से वो इंजीनियरिंग में आ गए, वो नहीं डालते, नेम भी नहीं डालते ठीक से और रोल नंबर भी नहीं डालते। ओके, उनका ये सारी चीजें छोटी छोटी जो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होते, फाइनल रिजल्ट में। ओके, so according to Faraday's law of electromagnetic induction, an EMF is induced in a conductor when, क्या है रे कंडीशन, कब इंड्यूस होता है? It cuts the magnetic flux. It cuts the Magnetic flux. magnetic flux। ठीक है, करेक्ट है आंसर, है ना, वही आंसर है। देखो यस मैम। नेक्स्ट, ये हो गया, उसके बाद नेक्स्ट come towards next point. The magnitude of statically induced EMF depends upon, the magnitude of statically induced EMF, Rate of change of flux. wait, magnitude of statically induced EMF depends upon the किधर गया क्वेश्चन, क्या बताया आपने? Rate of change of flux. Flux magnitude, coil shape of rate of change of flux. Correct. Okay. Next, the coil has 100 turns and inductance of coil is 0.15 Henry. What will be the magnetic flux of the coil when 4 ampere current pass through it? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे रे यहाँ पे? N d phi by dt. कौन सा, क्या क्या दिया है? N phi upon I. I C, N is equal to 100 दिया है, L is equal to 0.15 दिया है, एंड एम्पियर करंट इज इक्वल टू 4 एम्पियर दिया है। ठीक है, सो क्या पूछा है आपको? व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? L is equal to N phi by I. एग्जैक्टली, L is equal to N phi by I, इतना सिंपल फॉर्मूला था। ठीक है, एंड आंसर क्या आया था इसका? 6 milliweber. 6 milliweber. 6 मिलीवेबर। ओके, करेक्ट है, 6 मिलीवेबर आया था। सिंपल फॉर्मूला है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि फॉर्मूले लिस्ट आउट करो। एमसीक्यू में ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये हो गया। Which of the equation is correct of energy stored in inductor? ठीक है, Li square by 2. वन हाफ Li स्क्वायर, राइट? तो ये क्या है? फर्स्ट ऑप्शन वही है ना, 1/2 Li स्क्वायर। एनर्जी तो मैग्नेटिक फील्ड है ना। अरे एनर्जी स्टोर्ड मैंने कितनी बार बताया, कल भी बताया कि आपको क्वेश्चंस ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड और व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, बोथ आर सेम। मैंने कितनी बार बताया रे? बताया ना? जिनका ध्यान होता है वो बताओ, लोग रिप्लाई प्लीज। बताया है ना मैंने? और एक चीज बताए, एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर इज नथिंग बट एनर्जी स्टोर्ड बाय which field? Electrostatic field or electric field. Is it correct? Yes, ma'am. ये भी बताया मैंने, ध्यान चाहिए आपका इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट, a laminated soft iron ring of relative permeability 1000 has, क्या दिया है? 1000 क्या दिया है? mu r, yes, has mean circumference of 800 mm. mean circumference means क्या दिया है रे? रिंग की लेंथ, है ना? circumference is nothing but length 800 mm and cross sectional area of 500 centimeter square. A radial gap of 1 mm width is cut in the ring which is wound 1000 tons. means tons कितने? N is equal to 1000 tons. 1000.
Calculate the current required to produce an air gap flux of 0.5 milliweber if leakage factor is 1.2 and stacking factor of 0.9. ठीक है, ये सारी चीजें निगलेक्ट करो, लीकेज फैक्टर, स्टैकिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे आप बताओ? किया है क्या किसी ने कैलकुलेट? कैन एनीवन एक्सप्लेन? रिप्लाई? हेलो, किया मैम, आया नहीं वो। आया नहीं, क्या है आंसर इसका? 1.64 1.64 एम्पियर। ठीक है, आया कैसे नहीं? फिर आना चाहिए ना। क्या कैलकुलेट करना है आपको? कैलकुलेट द करंट। ओके, कैलकुलेट द करंट रिक्वायर्ड, गिवन क्या क्या है मैं कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, iron ring relative permeability mu r is equal to 1000। मैंने कैल्सी भी नहीं लाया है। 1000। नेक्स्ट, circumference length is equal to 800 mm। mm का मीटर में कैसे करोगे? 800 into 10 to the power क्या? हेलो, 800 into -3 मीटर। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर 10 minus 500 into -4। yes, air gap of 1 mm, length of air gap is 1 mm। 1 into 10 to the power of -3 meter। n number of turns are 1000। okay, calculate the current required। ठीक है, मैं जब मेरे जगह पे जाऊंगी तब मैं कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। मैंने गिवन लिख के लिए। ठीक है, ठीक है क्या? ओके। हाँ, Okay. क्योंकि अभी कैलकुलेट नहीं कर सकती हूँ मैं, कैल्सी नहीं मेरे पास। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। When two coils are said to have mutual inductance of 1 Henry, कब बोलते रे? 1 ampere second और 1 volt मिलेगा। Yes. What is the formula for L in, or you can say what is the EMF in terms of L? E is equal to M is equal E is equal to M di by dt है ना? E is equal to M di by dt म्यूचुअल इंडक्टेंस उसमें आता है। ठीक है, अगर EMF 1 वोल्ट हो रहा है कब होगा? अगर करंट 1 एम्पियर पर सेकंड से चेंज हो रहा है। मैंने ये डेफिनेशन आपको बताई है। करंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकंड इन वन कॉइल इंड्यूसेस EMF ऑफ 1 वोल्ट इन द अदर कॉइल। करेक्ट? yes, it's correct। Yes, ma'am. next, a solenoid has a flux of 12 milliweber and flux density of 0.9 Tesla। The inside diameter of solenoid must be, बताओ। B is equal to formula 5 by A। करेक्ट ना? B दिया है 0.9 टेस्ला, क्या है आपका? B है ना? फाइ दिया है, फाइ कितना दिया है? 12 milliweber। You have to convert 12 milliweber। You have to convert it into Weber, 10 to the power -3। ओके, एरिया मिलेगा आपको। एरिया इज नथिंग बट सोलेनॉइड है, उसका एरिया कैसे रहता है? सर्कुलर, राइट? सो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। कितना आया था आंसर? 13। ओके, यस करेक्ट, 13 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे देखो सारे जो आपके ऑप्शन है वो 13 के फॉर्म में ही है, एक छोड़ के। तो आपका यूनिट भी सही आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडक्टेंस इज टू रिलक्टेंस क्या आएगा? इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी एंड रिलक्टेंस का यूनिट एम्पियर टर्न पर वेबर। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, what is the total flux if iron core within a solenoid has cross sectional area of
2 centimeter square and flux density within the iron is 0.8 Tesla. What is the total flux if iron core within the solenoid has cross sectional area 2 centimeter square दिया है? Simple है. B is equal to कौन सा फॉर्मूला? 5/A. वही फॉर्मूला है. क्या आंसर आया था इधर? 0.16 milligram. कितना? 0.16 milligram. 0. हाँ यस 16 मिलीवेबर. अभी यहाँ पे भी देखो हर एक ऑप्शन 16 के फॉर्म में है, लेकिन अगर आपका आंसर सही यूनिट में आया है देन एंड देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. नेक्स्ट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है रे? Equal to m by root L1 and L2. यस, AK is equal to m under root L1 L2 एग्जैक्टली. एंड अगर m मैक्स के फॉर्मूले में पूछते तो m डिवाइडेड बाय अंडर रूट L1 L2 क्या आता है? m मैक्स है ना. अंडर रूट L1 L2 इज नथिंग बट m मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k? 1. Why 1 क्यों रे? अभी देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मींस दोनों कॉइल में फ्लक्स लिंकेज कितना है. ठीक है, अभी देखो m डिवाइडेड बाय m मैक्स. अगर आपका जितना फ्लक्स प्रोड्यूस हो गया उतना सेम फ्लक्स लिंक हो गया तो आपका रेशियो कितना आएगा? ये 1 आएगा. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k विल बी 1. Due to the process of electromagnetic induction is always such that it will set up the current to oppose the basic cause responsible for inducing the EMF. This statement is given by कौन से scientific Lenz, right? Lenz ने दिया है, Heinrich Lenz. मैंने है कितनी बार बताया है कि according to Lenz law बताया ना? Yes. According to Lenz law ऐसे बताती मैं. The nature of induced EMF is और are कितने EMF है रे? Dynamical and statical induced EMF, both A and B. Correct. Next, a coil of 200 turns is linked by a flux of 20 milliweber. ठीक है, और n है 200. It is linked by 20 milliweber. phi है 20 milliweber. If this reversed in time of 2 millisecond. ठीक है, फ्लक्स को क्या किया? रिवर्स किया. कैलकुलेट द एवरेज EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल. कितना आएगा रे? 4000 volt. फॉर्मूला कैसे आएगा बताओ? E is equal to phi2 minus phi1. करेक्ट ना? Yes, ma'am. Yes. हाँ, phi2 minus phi1. तो phi2 कितना आएगा? 5. हेलो, टू 200 टर्न से एंड 2 मिलीसेकंड थे. ओके, सी सिंपल है बट नो वन इज आंसरिंग. बोर्ड दिख रहा है ना आपको या नहीं? Yes. Yes, Okay. ट्वेंटी मिलीवेबर पहला फ्लक्स था और सेकंड टाइम उसको रिवर्स किया. रिवर्स मींस -20 मिलीवेबर हो गया. कितने टाइम में? 200 turn. टाइम पता कितना? 2 मिलीसेकंड था ना? 2 मिलीसेकंड. 2 into 10 to the power -3. और एक का कन्वर्जन करना पड़ेगा. 20 into 10 to the power -3 वेबर. 20 into 10 to the power -3. Simple. E is equal to EMF minus m d phi by dt minus 200. phi2 minus phi1. d phi is phi2 minus phi1. So -20 -20 2 मिलीसेकंड. ये 10 to the power -3 दोनों का कैंसिल, राइट? So 20 plus 20 40. 200 into 40 divided by 2 कितना आता है? कितना आता है? 400.
Result. 400. Sorry, foot. 1400 ना? 4,000. 4,000. 4,000, sir. 4,000. 4,000. हाँ 4000 यस। स्क्रीन दिख रहा है ना? No, ma'am. स्क्रीन विजिबल है क्या नहीं? नो मैम। Yes, ma'am. नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। अभी दिख रहा है? नो। अभी दिख रहा होगा है ना? हाँ, अब दिख रहा। देखो 4000 is correct. Now generator works on the principle of, next question, generator works on the principle of, क्या रे? ये भी बताया था मैंने। Dynamically induced EMF. Dynamically, there are two types of EMF, statically and dynamically, correct? Static is nothing but stationary and dynamic is nothing but moving. तो मैंने बताया था कि जो जनरेटर है उसमें मूविंग पार्ट रहता है, रोटर, ठीक है? तो जहां पे मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, वहां पे ऑलवेज डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, ओके? एंड ट्रांसफॉर्मर जो है, ट्रांसफॉर्मर में कुछ भी मूविंग पार्ट नहीं रहता है, तो वहां पे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, करेक्ट? ये सॉरी वेट, स्टैटिकली नहीं, ऑप्शंस मैंने देखे नहीं, यहाँ पे देखो, ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन स्टैटिकली, डायनेमिकली एंड म्यूचुअली। अभी देखो, अगर यहाँ पे म्यूचुअली ऑप्शन नहीं रहता है, देन यू कैन सिलेक्ट द स्टैटिकली, बट यहाँ पे म्यूचुअली दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा रे? म्यूचुअली सही होगा, ओके? व्हेनेवर करंट इज फ्लोइंग थ्रू वन कॉइल, ईएमएफ गेट इंड्यूसेस इन अनदर कॉइल, ठीक है? तो म्यूचुअली क्या है? स्टैटिक का सब टाइप है। अगर ऑप्शन में स्टैटिक भी है और म्यूचुअल भी है, तो यू हैव टू सिलेक्ट म्यूचुअली, एंड अगर म्यूचुअली नहीं है, सिर्फ स्टैटिक है, यू हैव टू सिलेक्ट स्टैटिकली, Okay, ma'am. okay? Next, the property of coil due to which it opposes the current flowing through it, it is called, क्या है रे? Self inductance of सेल्फ coil. इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ये डेफिनेशन ही आपको बताया मैंने। नेक्स्ट, व्हेनेवर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिंकिंग विद कॉइल और अ कंडक्टर चेंजेस एंड ईएमएफ गेट इंड्यूसेस इन द कॉइल और कंडक्टर, दिस इज द Faraday's, this is the first law, and so what is the second law? Second law क्या है? Rate of change of flux is directly proportional to the Flux linkage. flux EMF linkage induced, no, EMF induced is directly proportional to the flux linkage, with respect ठीक to है? the time. Okay, EMF induced is directly proportional to the flux linkage or rate of change of flux, ठीक है? Now next we will start the unit AC fundamentals. Next part of unit number 2 is the AC fundamentals. ठीक है? In this AC Ma'am, fundamentals, yes. यूनिट कौन था ये? सेकंड यूनिट सेकंड ये उसका दूसरा पार्ट, बी पार्ट, ठीक है? फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था और दूसरा पार्ट जो है वो ये है, क्या बोलते हैं? AC fundamentals. AC fundamentals, ठीक है? अभी देखो AC fundamentals में हमें क्या क्या सीखना है? The terms, basic terms related to AC circuits. Before that, first of all, tell me what is meant by AC and what is the difference between AC and DC? क्या डिफरेंस है? Alternating current and डायरेक्ट करंट, Direct ओके? current. हमारे घर में कौन सा आता है? घर में कौन सा AC. AC आता है? So the
current whose values is changing with respect to time is known as alternating current. Means एक पॉजिटिव आना चाहिए, एक नेगेटिव आना चाहिए, और डी डायरेक्ट में इट इज कंटिन्यूअस, वो नेगेटिव में नहीं जाता है, ठीक है। समटाइम्स डायरेक्ट करंट इज लाइक दिस, ठीक है। तो आप क्या करते हो, ये वेवफॉर्म देख के आप डायरेक्टली बोलते हो ये एसी, इज इट एसी? नो ना? No. Why? This is called because ये सिर्फ पॉजिटिव में ही फ्लक्चुएट हो रहा है, नेगेटिव में कहीं नहीं है उसकी वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड पे चेंज हो रही है तो दैट इज कॉल्ड एज एसी। बट ये जो है डीसी है, बट नॉट, इट इज नॉट कांस्टेंट, सो इट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग डीसी। इसको क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग डीसी। तो ये चीज ध्यान में रखो। नाउ नेक्स्ट जो कांसेप्ट है, now what are the first of all advantages of can anyone tell me what are the advantages of AC over the DC supply? क्या क्या advantages है, कौन बताएगा? कौन बताएगा? किसी को पता है एडवांटेजेस क्या है? पता है क्या किसी को? नहीं, ठीक है। देखो, keep in mind the AC can be transmitted to long distance। AC वोल्टेज जो है, अभी आपको पता है, आपने कोयना नगर वगैरह सुना होगा, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो वो पावर प्लांट कितने दूर है और इसके वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत दूर तक ट्रांसमिट होती है, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ AC। नेक्स्ट, लॉसेज जो है वो AC में कम रहते हैं। और एक एडवांटेज है, वो आप ध्यान में रख सकते हो कि ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं सिर्फ हम AC सप्लाई में। मींस जहाँ पे आपको लो वोल्टेज चाहिए वहाँ पे आप AC को लो कर सकते हो, जहाँ पे आपको हाई वोल्टेज चाहिए वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उसको स्टेप अप कर सकते हो। मींस अगर सपोज 230 वोल्ट है, उसका मुझे 440 चाहिए, और 440 का मुझे अगर 230 चाहिए, तो ये कहाँ किसमें पॉसिबल है? सिर्फ AC सप्लाई में पॉसिबल है। सो AC सप्लाई कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन, मींस वी कैन यूज द ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट इज और क्या है इसका एडवांटेज? ओके, AC में जो मोटर्स वगैरह आते हैं वो सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड इट रिक्वायर्स द लेस मेंटेनेंस, ठीक है। द मोटर्स आर इन AC में जो मोटर्स वर्क होते हैं, जो AC इंस्ट्रूमेंट्स है, दोस आर सिंपल एंड इट रिक्वायर्स द लेस मेंटेनेंस। जस्ट कीप इन माइंड दीज एडवांटेजेस। अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो भी आपको मिल जाएंगे इसके एडवांटेजेस, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द सम टर्म्स रिलेटेड टू टाइम। कितना बाकी है वो देखते हैं पहले। 7 minutes. अच्छा, ठीक है, फिर अटेंडेंस लेते हैं एंड टुमारोज लेक्चर वी विल स्टार्ट इट फ्रेश में। हम स्टार्ट करेंगे इसे फंडामेंटल। एनी डाउट? समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, समझ में आ रहा है, फिर भी आपको खुद को भी पढ़ाई करनी है, देन एंड देन ओनली रिजल्ट विल बी गुड, ठीक है। रिजल्ट अच्छा आना चाहिए ना। कितना आएगा रिजल्ट ma'am. हमारा? कितना आएगा? 100%. पक्का? देखो Yes, ma'am. सब, अभी देखो ये 100% रिजल्ट आएगा, ठीक है, मैं भी खुश हो जाऊंगी, लेकिन अगर 100% में सब लोग पास हो जाएंगे तो किसी को भी टेंशन नहीं है। तो मुझे अभी फिर से एक बार एग्जाम फॉर्म, ये देखो आपका टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी वेस्ट होते हैं, और फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर बैकलॉग आता है तो पैसे कैसे वेस्ट होते हैं? एग्जाम फॉर्म जब आप भरोगे नेक्स्ट टाइम, जब आपका बैकलॉग आएगा, तो जो आपके बैकलॉग के सब्जेक्ट है ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फीस लगती है हर एक सब्जेक्ट को। एंड क्या होता है, जिन लोगों के बैकलॉग रहते हैं उनका एग्जाम फीस 2000
2500 ऐसे जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट अलग अलग चार्ज लगता है, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, मनी एंड डीप पढ़ाई करो, ठीक है। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। 2, Present, ma'am. 3, Present, ma'am. 4, Present. 5, 6, Present, ma'am. 6 present, 5 absent. 7, मॅम ड्युटी क्लास काय झालं? आम्ही जाऊ शकतो ना मॅम? येस झाली. येस 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 झालेले जाऊ शकतात. 6 झालं. 7 absent. 8 9 Present, ma'am. 10 Present, ma'am. 11 Present, ma'am. 12 Yes, ma'am. 13 Present, ma'am. 11 absent. 10 present था ना? 10 Ma'am, 11 present. 10 absent, 11 present, 12 भी present. 13 Present, ma'am. 14 Present, ma'am. 15 16 Present, ma'am. 17 18 प्रेजेंट मॅम. 19 Present, ma'am. 20 21 22 23 Present, ma'am. 24 25 25 present. 26 Present, ma'am. 27 प्रेजेंट मॅम. 28 Present, ma'am. 29 30 प्रेजेंट मॅम. 31 Present, ma'am. 32 Present, ma'am. 33 Present, ma'am. 34 35 Present, ma'am. 36 Present, ma'am. 37 Present, ma'am. 38 39 Present, ma'am. 40 प्रेजेंट मॅम. 41 Present, ma'am. 42 43 Present, ma'am. 44 Present, ma'am. 45 प्रेजेंट मॅम. 46 47 Present, ma'am. 48 Present, madam. प्रथमेश तू आता जॉईन झाला का? 48 हा 15 मिनिट 49 लेट झालं. Present, madam. 50 प्रेजेंट मॅम. 51 52 Present, ma'am. 53 54 55 Ma'am. 56 Present, ma'am. 57 58 Present, ma'am. ओके थँक्यू व्हेरी मच. मॅम एसएमईचं लेक्चर आहे का? SME तुमचा आज हा आहे ना वेनसडे 21 ला ना? नाही आता हे कम्युनिकेशन आहे, चेंज केलंय ना, आणि त्याच्यानंतर SME असं होणार आहे, ठीक आहे. हो ठीक आहे. हॅलो मॅम. येस मॅम रोल नंबर नाही घेतला 57? घेतला ना. तू कुठे होती? नाही, आवाज नाही आला म्हणून म्हटलं. ओके ठीक आहे. हा ठीक आहे.